Hello kids, how are you all? Welcome to our channel. तो आज करेंगे हम नेहा अलार्म क्लॉक की एक्सरसाइज। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में उसका चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले न्यू वर्ड स्नगल्स। स्नगल्स मीन टू गो इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब ब्लैंकेट के अंदर एकदम सिकुड़ के लेटना, कंफर्टेबल पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्नगल्स। मटर्स, मटर्स मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस, बहुत धीरे आवाज में बड़बड़ाना। विंडो सिल, विंडो सिल इज द एज ऑफ द विंडो। एज मीन्स जो कॉर्नर होता है ना, जहां पे हम कुछ रख सकते हैं अंदर की साइड से, उसको विंडो सिल बोलते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स मतलब कंफर्टेबल। Then there is an optional question answer. So we have to tick the correct answer. What time did Neha's clock ring every morning? So it's 6 o'clock. What did the bird says? Bird says wake up. Here I have already written all the answers because ये मेरे एक ट्यूशन के बच्चे की बुक्स है जिसमें मैंने already answers fill up किए हैं. So just ignore that. The third one is what is inside you that makes you get up at the same time every day? It's our body clock. Then here's a jumble words, जिनको words को incorrect या improper way में लिखा गया है, हमें उसे properly arrange करके एक meaningful word बनाना है. Put the letters in the right order. One has been done for you. So it's I-L-E-S-M. So correct करेंगे smile, S-M-I-L-E spell. M-R-A-L-A. The correct word is A-L-A-R-M, alarm. Then O-C-K-L-C, C-L-O-C-K, clock. M-O-R-M-I-N-G, the correct is M-O-R-N-I-N-G, morning. E-G-O-R-N-S, the correct is S-N-O-R-E-D, snore. W-O-D-W-I-N, the correct one is W-I-N-D-O-W, window. Then this is just a activity कि कौन सी चीज कैसा साउंड करती है. दिस इज नॉट फॉर एग्जाम पर्पज. हाँ, द क्वेश्चन इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप? नो. इफ देयर इज नो अलार्म क्लॉक इन द मॉर्निंग, सो माई मदर, द मदर इज द पर्सन हु विल वेक अप इन द मॉर्निंग फॉर आवर स्कूल. सो एक मदर है ऐसा पर्सन जो अलार्म क्लॉक हो ना हो, हमें मॉर्निंग में स्कूल के लिए उठा देते हैं. What are the different ways of knowing the time during the day? What are the different ways to knowing the time? Except that watch, there is a wristwatch, sun, and many other options. Okay? अगर हमारी अलार्म क्लॉक नहीं है, उसके अलावा वॉल वॉचेज होती हैं, रिस्ट वॉच होती है, सन. आपने जंतर मंतर में देखा होगा, एक बहुत बड़ी सी सन वॉच है. तो जैसे सन आता है उसके अकॉर्डिंग शेडो पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वॉच पे टाइम पता चलता है. तो ओल्ड टाइम में इस तरह की वॉचेस यूज होती थी. देन हियर इज अ वर्ड बिल्डिंग. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स देने हैं एंड हमें उसे इसे फाइंड करना है. सो मेरे में तो ऑलरेडी इट्स फाइंड है, आप अपनी बुक्स में कर लीजिएगा. फर्स्ट इज मदर. सो वेयर इज द मदर? M-O-T-H-E-R. Here is the mother. The second one is birds. Where are the birds? Here's the birds, B-I-R-D-S, birds. The third one is clock. C-L-O-C-K, clock. Alarm and happy. The alarm is here. A-L-A-R-M, alarm. H-A-P-P-Y, happy. Here's the happy, H-A-P-P-Y, happy. The next one is morning holiday. M-O-R-N-I-N-G, morning. H-O-L-I-D-A-Y, holiday. Hungry and Sunday. H-U-N-G-R-Y, hungry. And the Sunday is here, S-U-N-D-A-Y, Sunday. So this is the word finding. This is very important for exam purpose because शायद आपको 2 या 3 मार्क्स में ये आएगा एग्जाम के लिए. So this is very important and these 2 questions are also very important. And then after that, who said to whom? Wake up dear, wake up fast.
So who said to who? This is bird said to, that creepy bird said to Neha. Second, Ma, who woke me up today? Ma, who woke me up today? Neha said to her mother. Neha, mother. Why do you sleep at 9 every night? Why do you sleep at 9 every night? तुम रात को 9 बजे तक क्यों सो जाती हो? कौन कहता है? Mother to Neha. Mother to Neha. Then there is a was and were. Was is used for singular and were is used for plural. ये हमें पता है. Was we use for singular. जब एक चीज होती है तो हम was यूज करते हैं. जैसे I was in the house, I was eating pizza, I, one person के लिए I. And were we use for plural things. Plural things means we went for party yesterday, we went to the market yesterday. So were we use for plural and was we use for singular. तो उस हिसाब से राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर. राम अकेला बंदा है, राम इकलौता बंदा है, तो क्या आएगा? was. सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? was. तो यहाँ पे was आएगा. ओके. उसके बाद द काउज डैश गेजिंग इन द फील्ड. ये ग्रेजिंग मतलब चरना, घास चरना. तो वर, काउज है ना ऐसे, तो वर. माई टॉयज, देन अगेन ऐसे, तो वर आएगा. वर ब्रोकन. हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग. हर फ्रॉक, एक बंदी की बात हो रही है, तो was आएगा. द मार्केट was क्लोज्ड. मार्केट एक चीज है, एस वेस कुछ नहीं है, मार्केट है, तो was. देन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, सिंगुलर इज चाइल्ड एंड द चिल्ड्रन इज प्लूरल, तो प्लूरल है, तो वर. देन द फ्लावर्स डैश कैप्टन आवास. फ्लावर्स है एस, तो वर आएगा. सो आई होप आपको ये वॉज एंड वर का डाउट क्लियर हो गया होगा. जब एक चीज होती है सिंगुलर चीज तो वॉज, एंड एक से ज्यादा चीज होती है प्लूरल तो हम वर यूज करते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा. देन उसके बाद देयर इज सम वर्ड्स. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ. यू विल नीड दीज वर्ड्स. सो एक पैराग्राफ दिया गया है बेसिकली, एंड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें उस पैराग्राफ में वो फिल करना है. Yesterday I lost a book. I looked for it everywhere. I looked dash a door. अब डोर के कहाँ देख सकते हैं हम बुक को? Behind, डोर के ऊपर, डोर के नीचे, डोर के अंदर तो नहीं देख सकते, तो behind. The next one, I looked dash inside a cupboard. अब कपबोर्ड को खींचोगे तो उसके अंदर देख सकते हो, तो inside. I looked dash a bed. अब बेड के कहाँ देख सकते हो? अंदर. बेड के नीचे ही देख सकते हो ना बुक को, कहाँ देखोगे? तो अंदर. I could not find it anywhere. Then I dash शेरू. अब शेरू कौन है? कोई है उसका डॉगी है, गेस. हाँ डॉगी है, तो called out बुलाएंगे ना. अगर उसे कहीं नहीं मिलती तो वो क्या करेगी? I dash शेरू. शेरू को क्या करेगी? called out बुलाएगी. शेरू my dog came running to me. I asked him to look for my book. अब वो उसके पास आया शेरू और वो उसको बोलती है बुक देखने के लिए, तो he dash another book from my bag. Pulled out. अब उसने पुल्ड आउट किया. पुल्ड आउट मतलब निकालना. उसने शेरू को बुलाया तो शेरू ने क्या किया? पुल्ड आउट किया दूसरी बुक को उसके बैग से. सो इट्स क्लियर. बिहाइंड, इनसाइड, अंडर, कॉल्ड आउट, पुल्ड आउट, डन. नाउ देयर इज अ क्लॉक इज गिवन और हमें इसमें कुछ बॉक्सेस है, उनको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग. हियर इज अ क्लॉक. राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक. ठीक है. साउंड कैसा आता है? ट्रिंग ट्रिंग या टिंग टिंग, ये दोनों साउंड आते हैं. वर्ड क्या है? नेक्स्ट अनदर वर्ड क्या है वॉच के लिए? क्लॉक के लिए वॉच. देन हिंदी में हम क्या यूज करते हैं? जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं. मैं हिंदी यूज करती हूँ तो घड़ी. आप मराठी, गुजराती, पंजाबी जो भी यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ड फिल कर सकते हैं. देन सेंटेंस क्या बनेगा? आई गेट अप हेयरिंग द साउंड ऑफ अलार्म क्लॉक. ये भी बन सकता है. माई अलार्म क्लॉक वेक्स मी अप इन द मॉर्निंग. द नेक्स्ट इज नेम डिफरेंट पार्ट. पार्ट्स के नेम लिखने. डायल होता है, सेकेंड नीडल होती है, मिनट नीडल होती है, आवर नीडल होती है, सब नीडल्स के नाम लिखने. देन एक पिक्चर ड्रॉ कर देनी है क्लॉक की. सो ये एक पिक्चर है, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी ड्राइंग अच्छी है एक अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. देन इसी के अकॉर्डिंग हमें मॉर्निंग का भी करना है. मॉर्निंग का भी हमें इसी के अकॉर्डिंग फिल करना है कि मॉर्निंग को हम और क्या कहते हैं? सुबह बोलेंगे. यहाँ पे मॉर्निंग को हम
क्या बोलेंगे मॉर्निंग को? मॉर्निंग को हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग को हम सुबह बोलेंगे। देन मॉर्निंग में कैसा साउंड होता है? लवली साउंड होता है, या फिर कैसा साउंड होता है जैसे बर्ड्स बोलती हैं वैसा साउंड होता है, ठीक है? इट्स ओनली साउंड। देन सेंटेंस क्या बनेंगे? आई लव आई लव कोल्ड मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस हो सकता है, जैसा फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस हो सकता है कि आई लव अर्ली मॉर्निंग बर्ड साउंड। ऐसा कुछ हो सकता है, 2 सेंटेंसेस। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं मॉर्निंग का। ये एक ब्राइट सा सन आ रहा है, एक ब्राइट सा स्माइली सा सन है मॉर्निंग में, और यहाँ पे माउंटेन्स हैं ऐसे करके कुछ, और यहाँ पे बर्ड्स हैं कुछ, ऐसा एक अच्छा सा ड्राइंग आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट्स क्या कहते हैं? मॉर्निंग में बर्ड्स होती हैं, मॉर्निंग में क्योंकि मॉर्निंग होती है तो ये बर्ड्स आती है। सन होता है, या इसको आप लिख सकते हैं ब्राइट सन, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ब्राइट सन। और क्या होता है मॉर्निंग में? क्लाउड्स होते हैं, थोड़े थोड़े क्लाउड्स भी होते हैं। और क्या होता है मॉर्निंग में? विंड होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। सो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे था अनदर नेम क्या है मॉर्निंग का? मॉर्निंग ही बोलेंगे, सुबह बोलेंगे, प्रभात बोलेंगे, ये सब नेम होंगे। सो आई गेस ये भी क्लियर हो गया होगा मॉर्निंग का आप लोगों को। और यहाँ पे हमारी यूनिट 1 का ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसके साथ ही हमारी यूनिट 1 भी फिनिश हो जाती है। सो आई हैव एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल of unit 1 both chapter. The first one is the poem wake up and the second one is the chapter Neha's alarm clock. तो ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे होपफुली। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। सेपरेटली मैंने अलग अलग वीडियोस में ये पोएम एंड चैप्टर्स और उनकी एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन की है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए एंड इन शॉर्ट में आप वीडियोस को देख पाओ। वीडियोस के नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे, नीचे आईडी को आप फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अच्छी और मोटिवेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू।